Hello students. Now today we will start the new chapter of biology, that is chapter number 13, why do we fall ill? Students, you all must have heard this phrase, health is wealth, I'm sure. And you all know the importance of health, I guess. And whatever the situation we are facing since last 5 months, so I hope you all know that how important it is for each and every one of us for being healthy, right? So in this particular chapter we are going to deal with this only, that what is health, what are its importance, how can, what are the causes of diseases, and so on. We'll explore so many questions related to health in this particular chapter. So, what is health and what is its significance? So, in our day to day life, we are in our talking or daily language, we are using this word health so many times. But actually, health is a wide perspective. It's when we talk about health, it doesn't mean only we are talking about our physical health. A person is said to be healthy when it is physically, mentally, and socially fit. When the person is fit in all the three aspects, then only that person is said to be a healthy person. It is not like that we are then whenever we are like healthy means if we are disease free, we are fit physically, we are considered as a healthy person. If the person is not mentally healthy, if the person is in depression, tension, stress, the person is not mentally fit or healthy. And if the person is not socially fit, having not good terms or not very social, अगर आसपास लोगों से अच्छे से बनती नहीं है, लड़ाई होती है नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, अकेले रहना पसंद है, द पर्सन इज़ नॉट वेरी सोशल, देन ऑल्सो द पर्सन इज़ नॉट सोशली फिट. सो इफ़ द पर्सन इज़ आइदर नॉट सोशली फिट or not socially or mentally fit or not physically fit, the person is cannot be considered as a healthy person. एक हेल्दी पर्सन के लिए उसको तीनों आस्पेक्ट से हेल्दी होना ज़रूरी है. पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ. ये तो मुझे लगता है आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको समझ में आता ही होगा दैट नॉट ओनली अवर पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, कम्युनिटी हाइजीन is also important. If we are talking about personal hygiene, so we can say we should take proper bath, we should keep ourselves clean, trim our nose, this nails, hair regularly, wear clean clothes, keep our house, our room clean, all these things we do. But when we talk about community health, we have to keep not only our house clean but also our surroundings, इनसाइड ऑल्सो एज वेल एज आउटसाइड ऑल्सो. ठीक है, तो हमें आस पास भी सफाई रखनी है. देर शुड नॉट बी एनी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन एनी प्लेस. ठीक है, देन घर में जो भी कचरा है, गार्बेज है, दैट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड. It should not be like that we can clean our houses from inside and all that garbage we just throw outside out of our houses so that it keeps on stinking for the whole day. So both the things are important to keep us healthy, personal hygiene as well as community hygiene. और हमारी जो कम्युनिटी हाइजीन है, स्वच्छता मिशन है, आपको पता है ऑलरेडी आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड फ्यू ईयर्स बैक, और हम उस पर काम कर रहे हैं कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है. और जब तक हम वो क्लीन नहीं रखेंगे, वी कीप ऑन सफरिंग. हमारी जो हेल्थ है वो हमेशा सफ़र करती रहेगी. Then distinctions between healthy and disease free, very important. Disease free means the person is free from disease, means there is no problem in the person's body, physically the person is fit. Or disease means there is a ease means comfort. When there is a discomfort, when there is not ease, or dis-ease means not comfort in our body, then that condition, that situation is called disease.
ठीक है. And disease free person can be said when the person is physically fit, but the person is healthy only when the person is physically, mentally and socially fit. So there's a big difference between a disease free and a healthy person. So one should attain, one should not one should not be disease free, one should be healthy. सिर्फ फिज़िकली फ़िट होना ही फ़िट होना नहीं है, आपको मेंटली और सोशली भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग मेंटली और सोशली फ़िट नहीं होते वो कहीं ना कहीं दे आर नॉट हेल्दी एट ऑल, दे आर नॉट फिट. क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनकी फिज़िकली इन अ लॉन्गर टर्म वो फिज़िकली भी दिखाई देती हैं. नाउ डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़. व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक? क्या दिखती है, कैसी दिखती है एक बीमारी? ऑब्वियसली वेन एवर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो उसके किसी ना किसी बॉडी पार्ट में, किसी ना किसी ऑर्गन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी शुरू होती है. बिकॉज यू ऑल नो दैट इट इज़ समवेयर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग. आपके किसी सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी. एंड दैट shows its symptoms. Symptoms can be headache, symptoms can be stomach ache, it can be any kind of fever or anything, cold, coughs, anything it can be. So these are all the symptoms. So symptoms are the indication of the presence of any disease in your body, which shows that something is unfit in you. ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. तो वो सिम्टम्स होते हैं. सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है. तो फिर ये पता कैसे लगेगा कि वो प्रॉब्लम क्या है? व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर आस्क यू अबाउट योर प्रॉब्लम. आप बताते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, कुछ दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, वॉट एवर इट इज़. देन आफ्टर डायग्नोजिंग, आफ्टर लिसनिंग टू यू, आफ्टर डायग्नोज योर बॉडी, कोई भी टेस्ट से के थ्रू, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट या किसी भी और तरीके से वो उस नतीजे तक पहुंचते हैं और वो साइन को पता करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है. एंड फाइनली दे कंक्लूड दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़ विच यू आर इन्फेक्टेड. ठीक है, तो साइन और सिम्टम में यही एक मेजर डिफरेंस है. सिम्टम्स जनरल होते हैं और साइन जो होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, जो आपको पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बताते हैं. सर दर्द, पेट दर्द कई तरीके से हो सकता है. ठीक है, पेट दर्द फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है. पेट दर्द हो सकता है कुछ आपने ऐसा खाया हो जो रॉ हो, जो प्रॉपरली कुकड ना हो, उसकी वजह से भी हो सकता है. पेट दर्द लूज मोशंस की वजह से भी हो सकता है. इट कैन बी 100 ऑफ रीजन्स. सेम वे वेन एवर यू आर हैविंग हेडेक, तो हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ योर एग्जाम स्ट्रेस, एनी टेंशन विच यू आर टेकिंग. ठीक है, सर दर्द आपको मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, सर दर्द आपको माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है, सर दर्द आपको ब्रेन फीवर की वजह से भी हो सकता है. इट कैन बी मैनी रीजन्स. तो सर दर्द जो है, जो हेडेक है, दैट इज़ अ सिम्टम विच इंडिकेट्स दैट सम प्रॉब्लम इज़ देयर इन योर बॉडी. एंड साइन जिससे ये पता लग जाता है कि वो सर दर्द हो किस वजह से रहा है, वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है या सिंपल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो वो होता है साइन. So this is the major difference between sign and symptoms. Now next topic we are going to discuss in our next video.